welcome. Come. Thank you. Wow. Yeah. So that's our journey where it started. Balak Palak. That was the first one? What the first film. So that's where it started. 2013. This is 2014. Yellow. Another special film. Mahesh Limay was the director. Ravi Zadov was the director of this. Then Lay Bhari debuted. Of course. With Nishikant Kamath as the director. Yeah. तुमचं directionचा photo कुठे आहे? नाही लावला. No, but strangely, been the It's journey. very fascinating always when an actor turns a director, because I always imagine कि how do you, क्योंकि it's the easiest for an actor to surrender to a director कि आपका vision बताओ, I'll just surrender to that vision. But when you have that responsibility as a director yourself, that it's your vision, then how does it play? I get very fascinated by it. No, I just feel that when you are directing, and see, you've been part of this process for the longest time, so I don't think understanding the process of filmmaking is very new for you. Yeah. I'll tell you, my journey, I never wanted to be an actor. I became an actor, accidental. I got a chance to be in a film. I said, okay, let's try. So that's how my journey started. That's where I met Janila, and that's where life is lucky, of course. So sweet. But apart from that, then I learned just watching people around. Then that's when I became producer, 2013. And then slowly understood production. And it took almost 10 years from then to finally think, okay, let's direct a movie. But then Raja Shivaji was different. But I just feel that if you're part of the writing process as a director, then you start growing with the film. नहीं, मैं वही सोचूं कि written by, directed by, produced by, and acted by, and not for any other character. See, if it was any other fictional character or any other thing जिसके साथ आस्था नहीं जुड़ी हुई, जी. it becomes a very different thing. But when it's Chhatrapati Shivaji Maharaj, and then you have all these responsibilities, and almost we always say that the director is always the, like, the captain of the ship, and it is so many more responsibilities. Plus that, because Chhatrapati Shivaji Maharaj, for a Maharashtrian or anybody who's born and raised in Maharashtra, जी. it's not just part, it's part of our parvarish. Correct. Correct. तो वो साथ में लेकर, where is that conviction coming from and the strength coming from? I think strength, rightfully, I think it's Maharaj only. I just feel that he gives you that strength. It's been 10 years since we've been trying to do it. 10 साल से कोशिश रही कि 2016 बनाएंगे, नहीं हुई, 19 में बनाएंगे, नहीं हुई, अब जाकर बन गई है या रिलीज़ हो रही है. तो मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि जब महाराज की बात आती है ना, तो इमोशनल कोर जुड़ जाता है. मेरा क्या, सभी का. और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि आपको क्या कहानी बतानी है. और जब कहानी बताने का वक्त आता है तो ये सोचते हो कि ऐसे इंसान के बारे में आपको कहानी बतानी है, तो ये शुरुआत कहाँ होगी, ये कहानी का अंत क्या होगा. करेक्ट. इट्स अ फिल्म अबाउट अ वॉरियर, इट्स नॉट अ वॉर फिल्म. और ये छत्रपति शिवाजी महाराज की सिर्फ ये कहानी जो है, ये ऑफ कोर्स जितनी उनकी है उतनी ही उनके परिवार की भी है. बहुत सारी चीज़ें जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, करेक्ट, वो जान जाएंगे. सो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी. This is such a beautiful image to even have, that you could create this. It's must be such a special feeling, na? No, it is. जब कैमरा लगा, एक होता ना, एक you just felt that एक डिवाइन मोमेंट सब बन गया था उस वक्त. नॉट बिकॉज वी आर पार्ट और इन द फ्रेम, नॉट बिकॉज बिहाइंड द कैमरा. ऐसे फ्रेम देख रहे थे ना, तो सर दिस इज जस्ट डिवाइन. वो 5:30 की लाइट थी और फेस पर आ रही थी, सारे कलर्स, सब लोग नाच रहे थे, गाना चार्ज कर रहा था. इट्स जस्ट एंड आई जस्ट फील इट्स सो कल्चरल. अगर आप ये सबके चेहरे भी देखो ना, इट्स सो कल्चरल, इट्स सो मराठी. लगता है, आई एम श्योर, लाइक वो इसमें जरूरत नहीं पड़ी होगी कि किसी को पीछे बताना कि यार ये फील करना है या ये एक्सप्रेशन रखना. नहीं, बिल्कुल नहीं. अब ये देखो, ये औरत का एक्सप्रेशन, अरे क्या हो रहा है, शी इज जस्ट इन द पल्लू, जस्ट दिस रेडिएटिंग स्माइल्स हियर, जस्ट लुकिंग एट व्हाट्स बीइंग परफॉर्म्ड अहेड. बट हाउ अमेजिंग यू बोथ आर लुकिंग. ओके, थैंक यू. There is also there's this emotion which is attached to you and Bhabhi also, that कि पता नहीं, there's this something that I just feel like everybody is always rooting for you both. How sweet. It really is. It really is. Just to see you both na, it's just really amazing. मैं आपको बताता हूँ विकी भाई कि हर एक इंसान को ऐसा लग रहा था कि मेरी पिक्चर है.
I know exactly what you. कि ये महाराज के लिए मैं कर रहा हूँ। वो भावना है ना, दैट इज बियॉन्ड, रोंगटे खड़े हुए मैंने सोच कर कि ये सब लोग जब गाना खत्म हुआ, जब हम लोग बोल रहे थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, वो जय घोष और एंड लैंड ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, कैसे लगता था कि यहाँ से गुजरे होंगे कभी। Yeah. अरे वाह, it's You said that. नहीं बताओ, यहाँ पर जब मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, क्या इन पत्थरों ने कौन सा इतिहास देखा हुआ है, कौन से लोग महापुरुष यहाँ से होकर गए हैं। मैं आपको बता दूँ, मैं शिवनेरी गया था, और शिवनेरी गया सुबह 6 बजे, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती थी उस दिन, और शिव जयंती। और सिर्फ वहाँ खड़ा था मैं वहाँ उस कमरे में गया जो हमारे फिल्म में है, और वहाँ पर बैठा मैं देख रहा था कि मैंने पहले शूट कर लिया था उस सीन। हाँ. और शिव जन्म का हमारा एक सीन है जहाँ महाराज पैदा होते हैं, और मैं वहाँ पर बैठा हूँ और मैं सिर्फ इस कमरे को देख रहा हूँ कि मैं तो ये शूट कर चुका हूँ, लेकिन ये वही कमरा है जहाँ पे ये मोमेंट हुआ है। और सिर्फ मैं वहाँ तक रुका था, हवा आ रही थी, और मैं सोच रहा था कि ये वही हवा है जिसने कभी महाराज के चरणों को छू लिया था, आज मेरे माथे को छू रही है। हाँ. तो इट वाज एक बहुत ही सरकेफ, चलिए 20-23 साल में 50-55 पता नहीं कितनी फिल्में हो चुकी है, पर ऐसा सिर्फ इसी फिल्म में लगा। I know, I can totally relate to what you're saying because last year on छत्रपति शिवाजी जयंती मैं रायगढ़ किले पे गया जी, वाह। एंड आई नो एग्जैक्टली व्हाट यू सेइंग बिकॉज वो हो ही नहीं सकता कि आप वहाँ जाओ एंड यू कांट स्टैंड देयर एंड स्टार्ट री इमेजिनिंग एंड सम ऑफ द मोमेंट्स दैट यू ट्राई टू रिक्रिएट इन द फिल्म, some of the by imagination in a room that you start and get a team together, speak, let's build this, let's get this together. But when you're standing there and you feel and you like, you know, these little moments that you think यार ये ऐसा हुआ होगा, आज मैं वहीं पे हूँ, शायद एक कण मिट्टी का अभी भी पड़ा होगा तब का, I don't know, like मैं शिवनेरी की मिट्टी मैं लेकर आया हूँ वहाँ से। क्या बात कर रहे हो? मैं एक बीकर फ्लास्क लेके गया, वहाँ से मिट्टी उठाई, रख दी, और आज भी मेरे मंदिर में भगवान के बाजू में वो मिट्टी है जहाँ पर, जिस ज़मीन पर महाराज पैदा हुए। I always felt like, you know, when I got to be a part of Chhava, now this, I always feel some films ना, the overwhelming thought of you is कि यार इसमें फिल्म का क्या होगा, फिल्म की डेस्टिनी क्या है in terms of success failure. Some films go beyond that. क्योंकि मुझे हमेशा इन दीज लिटिल मोमेंट्स ना, वंस यू गेट टू नो द कल्चर, वंस यू गेट टू नो व्हाट इट रियली मीन्स, इट जस्ट फील्स कि यार इसका मैं हिस्सा हो गया, और ये प्रोसेस का ये मेरे किस्मत में लिखा था और ये हो गया, ये बहुत बड़ी कमाई है, बहुत ज़्यादा। ये इसके ऊपर मैं कुछ आशा रखूं, कुछ भूख रखूं कि ये हो जाए, बाकी सब बहुत छोटा लगने लग जाता है। ये पूरी फिल्म एक पुष्प है जो इनके चरणों में हम अर्पित करते हैं एज श्रद्धांजलि, क्योंकि हम किसी भी समय वी कैन नॉट कंपेयर थिंग कि इनकी लाइफ हम कभी किसी कैनवस में कैद कर पाएंगे, ये तो हम कर भी नहीं, और कोई भी नहीं कर पाएंगे, वो हो ही नहीं। लेकिन क्या है कि ये एक ट्रिब्यूट है, आपने फिल्म की एक आपका ट्रिब्यूट है। ये फिल्म मुझे लगता है कि और ज़्यादा फिल्में बननी चाहिए, जितनी फिल्में, क्योंकि हर एक का पर्सपेक्टिव अलग होगा, एक अलग पहलू दिखाएंगे, और वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने पहलू तो सब एक जगह सीमित नहीं कर पाते। No, but what's amazing also, and also I really just want to congratulate you for that, is you must have given so many people this opportunity to live their dream. That, you know, to be associated with a journey like this. That they'll be like, यार हाँ, इस फिल्म का मैं हिस्सा था, that they can tell to the other generation, next generation or whatever. Which is, No, it's just wonderful. I just feel कि हमें ऐसा मौका मिलता है कि हम ये कर पाए, और इसका प्रोसेस भी it's been like a up and down कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ शुरुआत करनी है, about the process then. शुरुआत कहाँ है, it's been like a करना चाहिए, क्या सही है, क्या। Wow.
I love this shot. It's been like a What a great feeling to just have this shot. In your filmography, forget everything else. Like just I have this shot. It's if you had to tell me that okay, out of all the million things जो आपको इसमें, you know, when you would have sat down to okay, how to make this happen. The passion is there, the astha is there, everything is there. I've got the best team together. Now in this, what was it for you कि ये this was the biggest battle. This, I don't know if it was one technical thing. What was the biggest thing you were like, okay, I'm worried about just this thing coming right? It's the best thing that you've asked. And I'll tell you because I've struggled with it the most. क्या होता है ना जब भी हम फिल्म बनाते हैं एटलीस्ट मैं सोचता हूँ कि हमें ये पता होना चाहिए कि कहानी ख़त्म कहाँ हो रही है. इसमें कहानी कहीं भी शुरुआत हो सकती है कहीं भी जैसे स्पेसिफिक हमको पता है कि ये कहानी यहाँ ख़त्म हो रही है. करेक्ट. और सिनेमैटिक जर्नी है तो कहानी में हमको पता है कि हमारे हीरो कौन है. हमको ये भी पता ना होना चाहिए कि उनके सामने जो चैलेंजेस है वो सबसे बड़ा चैलेंज कौन है ताकि आपको एक सिनेमैटिक हाई मिले. Correct. तो हमने जब रिसर्च किया तो हमको पता था कि जब कहानी ख़त्म हो रही है तो हमें लगा कि अफजल खान से बड़ी कहानी नहीं हो सकती उस वक्त के लिए. क्योंकि अगर हम हम देखने जाएं तो छत्रपति शिवाजी महाराज एक साधारण जर्नी नहीं उनकी. Correct. क्या है कि जब उन्होंने अफजल खान को मार दिया, अफजल खान बहुत बड़े फौज का सूबेदार था. और वो जब प्रतापगढ़ आया कि अब शिवाजी महाराज को मारना है, तो उस वक्त क्या था कि सभी को ये नहीं पता था कि महाराज कैसे उनका सामना करेंगे. स्ट्रैटेजी क्या थी. तो वो स्ट्रगल जो है कि इसको कैसे हम अपनी ओर खींच ले, वो दैट इज गुरिल्ला वॉरफेयर जो आज गनिमी कावा हम कहते हैं. वो तो पता था लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रगल ये था कि शुरुआत कहाँ करें. In terms of screenplay. इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन प्ले कहानी की शुरुआत कहाँ. Right. तो ये अभी यहाँ पर जो किताबें इनमें हम लोगों ने सब बहुत इसमें पढ़ा है, नोट मार्क किए क्या होता है क्या नहीं है, सब लोग अलग अलग अपने तरीके से कह रहे हैं. लेकिन मैं बताऊँ आपको कि जब हम महाराज की तरफ देखते तो पहला सवाल ये था कि वो कौन से वक्त कौन से दौर में पैदा हुए. वो वक्त क्या था, वो वहीं क्यों पैदा हुए, उसी घर में क्यों पैदा हुए, उसी वक्त क्यों पैदा हुए. जैसे श्री कृष्ण का जन्म है एक वक्त है, उन्हें वही पैदा होना था, उन्हें उसी गर्भ उसी कोख में पैदा होना था. वो वक्त की ज़रूरत थी. वो वक्त की ज़रूरत थी. और इसीलिए ये जिस वक्त महाराज पैदा हुए वो वक्त की पुकार थी, उनको वहाँ पर पैदा होना था. तो जब सबसे बड़ी कोशिश यही रही कि हम एक ऐसे बालक शिवबा की कहानी बताएं जिस घर में वो पैदा होते हैं, इर्द गिर्द क्या होता है. बचपन में शाहजहां और आदिल शाह के बीच में समझौता हो जाता है और इन्हें पुणे से बाहर निकाला जाता है. तो पूरा परिवार, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है कि शिवाजी महाराज के बड़े भाई 8 साल बड़े संभाजी राजे थे. दोनों घर से बाहर जा रहे हैं अपनी मर्जी के बगैर, खुद का घर छोड़ना और देख रहे हैं आपके पूरा घर छूट चुका है. आप घर छोड़ के जरा कर्नाटका, अब कर्नाटक में पता चलता है कि वहाँ से भी आपको बोला कि हाँ निकल जाओ यहाँ से. तो दूसरों की मर्जियाँ ढोते ढोते ये होता है कि अब क्या करें. तो माँ कहती बस अब मैं थक गई हूँ, मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगी. और वहाँ पिता कहते हैं कि एक बच्चा मेरे साथ रहेगा, एक बच्चा माँ के साथ जाएगा. वो जो परिवार से बिछड़ना है, वो सारे दुख, इट प्लेज ऑन अ माइंड टू फॉर सच ग्रेटनेस. तो वो एक इमोशनल जर्नी लेने की हम कोशिश हमने इस फिल्म में की है. Wow. I really want to watch that. No, you should. I would love for you to watch it. We tried to work out a lot of
details, lot of historical Yeah, facts. that's why also I feel always this genre of historicals is so tricky because वो जो fine line of historical accuracy और cinematic language वो इतना मुश्किल है उसका साथ में आना और वो magical भी है but it's not the easiest thing to achieve. No, ये एब्सोल्यूट क्या है ना कि अगर हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स में जाएं तो हम लोग डॉक्यूमेंट्री बना देंगे. नहीं एंड ऑल्सो कई बार आपको छांटना पड़ता है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस 2.5 hour स्टोरी दैट आई एम टेलिंग यू एज अपोज टू आई कुड से अ गाथा ऑल्सो. मैं 9 hour का भी बना सकता हूँ, मैं एक शो भी बना सकता हूँ. जी. एवरीथिंग इज पॉसिबल. पूछते हैं लोग कि फिल्म का बजट क्या है. मैं कहता हूँ आपकी फिल्म टिकट का बजट क्या है, उतना ही है. छोड़ो, फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म कितने में बनी है. हाउ डज इट मैटर? हाउ डज इट मैटर? इट डजंट मैटर. फिल्म 10,000 में बनी है, 10 करोड़ में बनी, कितने में बनी. It should be worth your 300 rupees and the time that you come and spend. So it should be worth that much. जितनी हमने मेहनत की है उतनी ही ऑडियंस ने वो 300-500 रुपए खर्चा करने के लिए, वो पैसे कमाने के लिए भी मेहनत की है. आई लव दैट पर्सपेक्टिव कि यू नो कि हाउ डज इट मैटर. हमने जितनी मेहनत की है, इवेंचुअली व्हाट मैटर्स इज पीपल आर वाचिंग इट एंड दे फील दैट it was worth their money, it was worth their time, it was worth their family outing. Great to keep that in I have to show you. This is Vidya Balan. Wow. I loved her in the trailer. Yeah, she's fantastic. Look at him, Sanju sir. The power he holds in a frame, yeah. This was one of those part of the and still trying to. This is so fascinating to perform as Chhatrapati Shivaji Maharaj, then to come and kind of view yourself if I've got the scene, if I've got the shot, and maybe not, and then go for another take. Yeah. It's incredible, and it's probably the toughest character you could do it with. It is because what happens is that when you're wearing the costume, you have to maintain the dignity of the costume that you wear. मतलब आप फ्रस्ट्रेशन में कुछ बोल नहीं सकते, आप कुछ कह नहीं सकते, तो यू हैव टू मेंटेन कि ये जिम्मेदारी आप पर है बहुत बड़ी. स्पेशली एक बार जिरेटो नहीं रहे तो ये तो यू नो इट बेस्ट. तो ये सब हैज़ बीन पार्ट एंड प्रोसेस. हम लोग शूट कर रहे थे मई में हमने सेट बनाया आउटडोर, जहाँ पर वी हैड ऑब्वियसली अभिषेक. दिस वाज लास्ट में लास्ट 25 मई बरसात हो गई थी. अनटाइमली बरसात हो गई थी मुंबई में. सेट खड़े खड़े भीग कर 2 महीने होल्ड करने पड़े, फिर रिपेयर करा, फिर बारिश हो, बारिश का एक पीरियड. अभी ये जो आपने कहा, आपने पूछा मुझे सेट कहाँ पर बनाया, और मैंने आपको बोला मड में. ये सेट ये एक्चुअली आउटडोर सेट होने वाला था. पर बारिश हुई इसलिए मुझे फिर इंडोर करना पड़ा. सो देयर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस के फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, फिर बड़ा करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हुई. पर मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे महाराज बोले हो जाएगा. उन्होंने जो हासिल किया उसके सामने कुछ भी नहीं है. मतलब तकलीफ है तो उन्होंने जो झेली है. सो वी जस्ट फील के इट्स बट व्हाट्स लाइफ विदाउट स्ट्रगल, राइट? ऑफ कोर्स. पर ये ओवरऑल कितना टाइम लगा था शूटिंग टाइम बताना? वी शॉट अबाउट 81 days. 81 days. 81 days. Yeah, I don't think people understand how impossible a task it is to finish a historical film in 81 days by a man who's acted, who's directed, who's produced, and who's written all by himself. It's unfathomable. It's like it's beyond. ये कितनी मेहनत, कितना precision, कितनी planning गई होगी. I can't even understand. ये क्या है, एक तो सेग्रीगेट कर दिया. थैंकफुली क्या होता है कि कभी कभी यू नीड पीपल हु बिलीव. इट्स अ ड्रीम दैट्स बियॉन्ड आवर मीन्स एंड रीच. जब ऐसा होता है तो यू नीड पीपल हु कम टुगेदर टू मेक श्योर दैट दिस ड्रीम इज पॉसिबल. So I felt, Jyoti Deshpande and Jio Studios who really came and backed, because it's not possible without a big studio coming and backing a vision. So to back, and you know it best, to be backed by studios that can really push the film to another level. But special mention to Genelia for handling this. क्या होता था, अभी आप सोचते हो कि ये अभी मैं बोलूँगा कि अच्छा मैं कल ये शूट करूँगा, मुझे इतना वक्त चाहिए, ऐसा नहीं होता था.
मेरा जैसे दिन खत्म हो जा रहा है एक लिस्ट आती थी मेरे पास, कल आप ये शूट करोगे, ये शूट करोगे, इतने घंटे में आपको ख़त्म करना है, क्योंकि ये एक्टर्स के डेट्स है। तो मुझे नहीं पता होता था कि मैं कल क्या शूट कर रहा हूँ। तो इट वॉज बेटर फॉर मी। मुझे पढ़ना ही नहीं कि एक्टर कौन से आ रहे हैं, कौन सा Genelia, she handled everything. For me, it became so easy. It was all sorted. Very tough job. It's a tough job. To make sure what we are doing next, depending on actors' availability, Location. availability, location, permission, this, that, everything. And so it's very important to have the right kind of partners. To just go through costume mein. So our Rushi Manushi was there. So she took all the paintings. के references क्या हैं, कैसे हैं, फिर किस तरह दिखेगा, टर्कोइज अगर हम लोग लेंगे तो क्या होगा। तो अगर आप देखेंगे, दिस इज़ क्वाइट डीपर टोन्स। अगर आप ये सब देखोगे, ये इट्स क्वाइट वाह। तो ये सारे हर कैरेक्टर्स के लिए इन्होंने ट्राई टू मेक So much detailing and those. This is for art. दिस इज फॉर लाइटिंग कि ये नहीं, जस्ट टू अंडरस्टैंड देन गुरिल्ला वॉरियर के अभी उनके पेंटिंग्स कैसे थे, हाउ आर वी इमेजिनिंग इट, क्या ये ऐसे होंगे, क्या ये होगा, फैब्रिक्स क्या होंगे, क्या ऐसे होंगे, क्या ये ऐसे होंगे, क्या ऐसे होंगे, के पेंटिंग्स कैसे थे। I don't think Marathi cinema has seen an action sequence like this. It was incredible. I'm so glad. It was incredible. And those close-ups and those one single shot especially was outstanding. The quality is so high of this action sequence. Just the shot taking, the execution of it is not feeling like, it was outstanding. And plus it was thrilling. Come. We're just AB is also there. Yeah, AB. So Abhishek actually, Great shot. when we were casting, I went to him. और मैंने पूछा, Abhishek, I have a part. I'm directing a film. Not one question. I said, done. आप बताओ कब I आना। saw that at the trailer launch. Yeah. Such a lovely moment at the trailer launch. Arey. Everybody was talking so honestly. It was just a very high emotion, because a lot of people actually, इस film में I have gone out of their way to do this film. And all the love for Maharaj and Marathi film, because like you born in Mumbai, you speak Marathi, rarely get an opportunity to do something in Marathi unless something comes up, And I had this opportunity. I asked Abhishek, he did it. And then he said, what part do you want me to play? And not popularly known, but Shivaji Maharaj had a real elder brother, Sambhaji Raje. And that's how we develop the brotherly bond between them. Shivaji Maharaj's son was also Sambhaji, as you know. But he was named after his brother. Firstly, I think not many people know that Chhatrapati Shivaji Maharaj had an elder brother. Yeah. And what's the story of the two brothers together? And that is what we are trying to explore. क्या होता है कि हमने सवाल पूछने शुरू कर दिए, दोनों भाई कैसे होंगे, या इनका रिश्ता कैसे होगा, कौन सी उम्र में किस तरह थे, क्योंकि पहले 12 साल ये दोनों इकट्ठा थे. और 12 साल की उम्र में शिवाजी राजे पुणे आ गए और 20 साल की उम्र में वो वहाँ रह गए. तो ये दोनों भाइयों की भी कहानी हमने इस फिल्म में थोड़ी बहुत एक्सप्लोर करने की कोशिश की. बट ऑल्सो आई थिंक अभी तक की फिल्मोग्राफी में जैसे हम सब ने आपको एंड अभिषेक को साथ में फिल्में करते हुए देखा है. लाइक ब्लफ मास्टर इज वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट. हाँ स्वीट, थैंक यू. सो आई डोंट नो, दिस इज वेरी मच लाइक इन द फैब्रिक दैट आप खड़े हो, सीन ना भी करो, आई विल बिलीव यू गाइस आर ब्रदर्स. एंड आई वर्कड विद Abhishek and I feel like he's one of the nicest human beings I've come across. Fantastic. Apart from being a great foodie, but he's one of the
most darling human beings I've come across, and I share such a हमारी कम बात होती है, but जब भी बात होती है, it's very heartfelt and very real. And I see so much brotherhood already between Ritesh and Abhishek. Yeah, no, You know, and somewhere that always reflects. and I truly, when I look at him, when I hug him, in the film or otherwise also, I know that कि ये मेरा भाई है. अब कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो मेरे लिए है, कभी भी ज़रूरत पड़े मैं उनके लिए रहूँगा. और मुझे लगता है ये रिश्ते ना हम लोग फिल्म में कमाते रहते हैं. और ऐसा नहीं है कि और हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि एक दूसरे के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं, आते हैं. And I want to thank you for really visiting this place, Not at all. being part of this journey. मुझे ये मेरी भूख है कि जैसे हमने पहले बात की थी कि थ्रू यू many people are getting to just be a small part of राजा शिवाजी. This was just my भूख कि कहीं किसी तरह मैं कहीं बीच में छोटे से मोमेंट के लिए जुड़ जाऊँ. नहीं नहीं क्या है ना, ये जो बातचीत है उसकी खासियत है कि अभी तक इस प्रोसेस की बात नहीं की. हमने हमेशा प्रोमो की बात की है या जो हो रहा है, पर उस प्रोसेस की बात नहीं की जिस दौर से हम लोग गुजरते हैं राइट फ्रॉम द राइटिंग स्टेज तो अब जब फिल्म शायद 5-6 दिन बाद रिलीज़ हो रही है. अभी का वक्त इतना वॉलेटाइल होता है. लेट्स 2 मिनट लेते हैं जी, बिकॉज आई नो कि क्या क्या चल रहा होता है. आई रिमेंबर जब भी जस्ट एज एन एक्टर आपको प्रमोट करनी होती है फिल्म एंड यू आर 5 days अवे, आपको नहीं पता होता है दिन शाम दोपहर रात, आपको कुछ नहीं पता होता है किस शहर में हो, कहाँ आप क्या कर रहे हो. यू जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट डे टू कम वेयर द फिल्म बिकम्स द ऑडियंसेस फिल्म. यू आर नॉट जस्ट द एक्टर, यू आर द डायरेक्टर. आपको पोस्ट प्रोडक्शन देखना है. देयर आर सो मेनी deadlines and deliveries and post production, dubbing and VFX and everything must be going on together. What is going on right now in your heart, in your brain? What is the list of to-do things that you have to do today? So I'll tell you by कल मैंने क्या किया. कल मैं सुबह बैकग्राउंड स्कोर पे गया, बैकग्राउंड मिक्स, फिर वहाँ से VFX देखे, फिर रात को मैं यहाँ पर आया डबिंग के लिए. एक एक्टर की डबिंग थी वो ख़त्म की 9 से 10, अंधेरे से यहाँ पर आया. और आते आते VFX शॉट्स पास कर रहा हूँ कि ओके ये चेंजेस है. फिर वापस गया, फिर 1 घंटा VFX, फिर जाकर हिंदी फिल्म की पूरी डब चेक कर ली कि क्या है नहीं, उसके करेक्शंस क्या है. वो ख़त्म हुआ सुबह 4:30 बजे. 4:30 बजे से अंधेरी से मैं निकला घर पे. 5-6 बजे मैं सोया. 6 बजे पिछली रात ये फिर सुबह 6 बजे मैं सोया. सुबह 6 बजे मैं सोया, मैं 7:30 बजे उठा. 7:30 बजे उठा, नहाया, वापस अंधेरी गया. हाँ बैकग्राउंड क्लाइमैक्स का बैकग्राउंड देखने के लिए. अब क्लाइमैक्स का बैकग्राउंड देखा, फिर हम यहाँ मिलने वाले थे तो वहाँ से मैं यहाँ पर आया. VFX के शॉट गाड़ी में चेक किए. अभी आपसे मिलूँगा, ये ख़त्म हो जाएगा. अभी VFX के शॉट में जाकर वापस जाऊँगा. मुझे मेरा क्लाइमैक्स सीन हिंदी का डब करना है. मुझे साउंड मिक्स पहले 4 रील्स के देखने हैं जो फर्स्ट हाफ है हमारा. उसके बाद VFX का जो दिया है वो रात भर देखूँगा. फिर ये कहानी सुबह तक चलती रहेगी. फिर सुबह एक प्रमोशनल इवेंट के लिए भिवंडी जाना है. फिर मैं भिवंडी जाऊँगा, फिर आऊँगा, फिर बाकी सब फाइनल के वो देखूँगा. सो तब 1 घंटे की नींद पे हो रहा है. ये 1 घंटे की दिल पे हो रहा है. मुझे इतना गिल्टी फील हो रहा है कि मैं यहाँ आके मज़े में फुटेज देख रहा हूँ और चिल करते हुए बातें कर रहा हूँ एंड मुझे मेरी भूख ख़त्म नहीं हो रही. बट नहीं, ये प्रोसेस है. आउटस्टैंडिंग. आई हैव अ फीलिंग कि आप जल्द ही जब कभी वक्त आएगा तो आप डायरेक्ट करोगे और ये प्रोसेस. देन मैं आपके पास आऊँगा. नहीं, वार्न मी एंड प्रिपेयर मी फॉर द राइट. I genuinely feel that मैंने जितना आपको जाना भी है या देखा भी है बातें करते हुए फिल्मों के बारे में, जिस तरह आप इंटरव्यूज़ हो, आपके पिताजी से मैं मिल चुका हूँ, उनके साथ मैं काम कर चुका हूँ. वो अपने लेजेंड है अपने फील्ड के. और आपकी परवरिश, ये सब एक ट्रैजेक्टरी होती है. और आई जनरली मुझे ऐसा लगता है कि यू विल टेक अ प्लंज
आज नहीं, कल नहीं, कभी जब भी वक्त होगा, पर हाँ वो डायरेक्शन का दरवाज़ा आपका बाहर से खटखटाएगा, आपको सिर्फ देखने के आप कब खोलोगे. आपके आई एम लुकिंग फॉर ही शेस्कर because that I've told you this पहले also कि it makes me very curious direction as a medium and how directors decide to make a film, write a film, everything. It makes me very curious. But every film that I do, I get to know how difficult the job is, how immensely इतनी सारी responsibilities होती है. And I also sometimes realize making the film is a very small part of making the film happen. You know what I mean? कि उसमें जो shooting है वो एक बहुत छोटा हिस्सा हो जाता है rather than getting the team together, explaining them the vision, making everybody come on the same plane, executing the film, then seeing the film till it reaches the theaters and comes to the audience in the right way. It's a journey. मतलब वो मैं डर जाता हूँ हमेशा. मैं आपको पूछता हूँ, आप एक्टर हो, आप अगर डायरेक्ट करना चाहोगे, कोई भी एक्टर जब डायरेक्ट करना चाहता है, what is the most difficult thing to do? What is the most difficult thing for an actor to become a director? To have an objective lens कि मैं इसको एक एरियल पर्सपेक्टिव से भी देख सकूं या नहीं. नहीं, और क्या और कुछ मुझे लगता है फॉर एन एक्टर टू डिसाइड है कि मैं डायरेक्ट करूँगा, सबसे मुश्किल पढ़ाओ, क्योंकि हम एक्टर हैं. हम सोचते ठीक है, इसको बाजू में रखते हैं, दूसरी फिल्म कर लूँगा, उसके बाद देख लूँगा, उसके बाद. क्योंकि जब भी ये वक्त आएगा ना, नहीं यार मैं जाऊँगा, लोग मुझे जज करेंगे, 4 लोग बातें करेंगे, फिर सोचेंगे अच्छा ये एक्टर था, अब डायरेक्ट कर रहा है, देखते हैं क्या बना रहा है. तो एंड एवरीबडी इज ऑलवेज लुकिंग एट द डायरेक्टर. चाहे वो सेट पे एनर्जी क्या होनी चाहिए या सेट पे वो 100वें बंदे को कितनी क्लैरिटी है, क्या करना है, डिपेंड्स ऑन हाउ मच क्लैरिटी द डायरेक्टर हैज कि क्या होना चाहिए आज. एवरीबडी इज लुकिंग एट द डायरेक्टर ओनली. मैं जब वेट डायरेक्ट कर रहा था, पहले दिन जब मैं सेट पे गया ना, तो मैं बाहर से बहुत ऐसा था कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से मुझे लगा सब लोग ऐसे देख रहे हैं तू डायरेक्ट करेगा बेटा, आजा एक्शन तो बोल. तो मतलब पहले दिन पर मतलब आप समझ रहे मेरी भावना. बट व्हाट वाज डे 1 ऑन राजा शिवाजी सर? It was Was it a gratitude. Was it an action sequence? No, it was just a normal scene. और हमने एक्चुअली पहले शुरुआत लुक टेस्ट से की थी, और जहाँ पर एक आरती का सीन है तुलसी के बाजू में, तो भगवान, वी ऑलवेज वांटेड टू स्टार्ट विथ सम डिविनिटीज, गॉड्स ग्रेस. अभी याद भी नहीं आता. अभी तो इतना कुछ हो रहा है. That's true, but thank you so much for your time. It has absolutely been my pleasure and I can't wait to watch the film. I will watch it in Marathi. I will take advantage of understanding the language. But I wish you all the very best. Thank you. And from all the Shiv Premis, including me, thank you for doing this. No, thank you. I will watch it and you. thank you. Thank you, my brother. Thank you so much.